اس پر کچھ کہنا ہے ایسا ہوگا کہ میں سورج کو چراغ دکھاؤں گی. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آر سی کی پوری ٹیم، ارشاد بھائی، شریف بھائی، شکیل بھائی، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہم اب جو ہے سووینئرس ڈسٹریبیوشن کی ایک بہت اہم مرحلے کی طرف رواں دواں ہے. آر سی کی ٹیم اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ پروگرام اقلیتی امور NK پاکستان کی جانب سے آرگنائز کیا گیا. آرٹس کونسل آف پاکستان میں آج کے دن اتوار کو روز آڈیٹوریم 2 میں ہم موجود ہیں. کہ وہ مائنورٹی پہ کام کر کے اپنے حصے کی 1 سیٹ 2 سیٹ 3 سیٹ اپنے حصے کے لیے رکھے. مائنورٹی کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ اقلیتی امور کی وزارت. نوید بھائی نے کیا بتایا؟ ہمیں موقع ملا تو ہم نے اہم ترین وزارتوں میں، ہمارے لیے IT اہم ہے نا کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے پاس تمام آپشن کے باوجود ہم نے وفاق سے IT کی منسٹری مانگی. تو ہم نے اقلیتی امور کے اپنے ایک ممبر کو سیٹ دی تھی. منگلا شرما خواتین کی سیٹ پر پہلی چوائس تھی. NK کی پہلی چوائس. یہ باقی تمام گو کے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، لیکن یہ اہم ترین پیغام ہے، بہت بڑے پیغام ہیں. یہاں آپ کے ساتھ کھڑے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے. وہ جو جنا کے پاکستان کا پاکستان تھا، وہ بھٹو کا پاکستان جہاں ہمیں دھکیل دیا گیا تھا، اس پاکستان میں مذہبی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کو جس طرح ختم کیا گیا، وہاں تو مائنورٹی کے ساتھ کھڑا ہونا سیاسی خودکشی نہیں بلکہ طبعی خودکشی جیسا سمجھا جاتا ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ابھی بیچ میں جو حالات تھے آپ اٹھا کے دیکھیں ایوانوں میں ہونے والی تقاریر کو، کہ بڑے سے بڑے وہ لوگ جو کمیونزم کے نام پہ، سوشلزم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے ایوانوں میں آئے، جو دراصل بڑے بڑے جاگیردار تھے. اس میں ہمارا تمام تر مسئلیتوں سے بالا تر ہو کر حق کے ساتھ کھڑا ہونا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو قائد اعظم نے اقلیت کے لیے کمیشن بنایا تھا، انہوں نے اپنے رسول، اپنے نبی، جن کو وہ اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے تھے، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بنایا. دین کا کہ سخت ترین، اسلام کی سخت ترین ہدایت ہے کہ نہ کسی کو جبر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس سے بڑھ کے لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم کو ہمارا دین مبارک. اس میں سخت ترین پابندی ہے، ممانعت ہے کسی کا جبری طور پہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا یا کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو تبدیل کرنا. اور یہ بات میں مکمل یقین کے ساتھ، اگر یہ
पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था और अगर ये इस्लाम के लिए भी बना था तो अक़लियतों के हुकूक की किसी भी मुल्क से ज्यादा यहां पर हिफाजत होनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा अच्छा एमक्यूएम पाकिस्तान में हो ना हो, पाकिस्तान की जो अक़लियती कम्युनिटी है वो भी उसमें शामिल है, तो हमेशा उनके दुख दर्द को मैं शामिल रही है और उनके दुख दर्द को अपना समझा है। मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ पर मंगला शर्मा, तो ये हमारी अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली MPA हैं और हमेशा असम्बली में अपनी कम्युनिटी के लिए और अक़लियती कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये किसी अक़लियती सीट पर नहीं है, ये अक़लियती सीट पर नहीं है, बल्कि MQM के हिस्से में उसके असेंबली में अराकीन की मौजूदगी की तनासुब से जो उसके पास 4 सीटें ख़वातीन की MPA आईं, जिसमें अमूमी तौर पर तमाम सियासी जमातें मुसलमानों को तरजीह देती हैं, तो उनमें से एक सीट हमने अपनी बहन को दी। अब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम को आपने चांद बख्शे, तमाम जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और मैं अपने सीनियर का जो हमारे निगरान राब्ता कमेटी उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब उनको मैंने प्रोग्राम बताया तो कि ठीक है आप करें, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। खालिद भाई से बात हुई, कमर नवीन जुबैर भाई से बात हुई तो सपोर्ट की, तो उनका एक ही सवाल था, ये आप लोगों के लिए भी सवाल है, ख़ास तौर पर मिनाटी के लिए। वो कह रहे थे कि लोग जमा हो जाएंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल होंगे। तो अच्छी बात थी, ये प्रैक्टिस हुई, पहली प्रैक्टिस है, मगर बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्लेटफार्म का, ये मौका मिला कि हमने जो सोचा था वो कर दिखाया। जो कमियाँ कमज़ोरियाँ वो आइंदा देखेंगे ज़रूर। जो सब स्पीकरों ने बात की, मैं एक स्पीकर थोड़ा सा उसमें इजाफा करूँगा। ये बात जहन में रखिएगा कि हमने मिनाटी डे को नहीं मनाया, हमने मिनाटी डे को याद कराया। खालिद भाई ने भी, सबने अच्छी बात की, मगर हमने सिर्फ उसको याद कराया कि MQM मिनाटी नहीं मानती। ये बड़ा लॉजिक है शुरू से, हम एक दूसरे को मिनाटी नहीं मानते, तो सब एक हैं, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। तो ये मेरी तहरीक का, मेरे सीनियर का फ़लसफ़ा है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम अक़लियत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर हर मुल्क में जो कम होता है वो अक़लियत होता है, ठीक है। ये मत समझिएगा पाकिस्तानी जिस तरह खालिद ने कहा सब पाकिस्तानी प्यारे पाकिस्तानी। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती कम्युनिटी के लोगों की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए, और MQM चूँकि खुद पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों के लिए जद्दोजहद कर रही है जो कि मज़लूमीन के ज़मरे में आती है, और उनके साथ किसी भी किस्म की अगर ज्यादती हो रही है। बस जाते एक बात कहूंगा फिर चला जाऊंगा कि कर्ज में और फर्ज में फर्क होता है। फर्ज
आप जो अक़लियत के लोग हैं इन्होंने अदा कर दिया। हमारे उर्दू स्पीकिंग भाइयों ने, बहनों ने जितनी कुर्बानियाँ दी, कभी उसका भी सोचा? उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, सब कुछ छोड़कर आ गए और यहाँ आकर बेयारो मददगार हुए और आज भी अपना हक मांग रहे हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें अपने साथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती सोच प्रचार की जा रही थी, जो संदेह किया जा रहा था, उसी दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों के लिए एक कमीशन को क़याम दिया। माइनॉरिटी कमीशन वजूद में आई और उनको एक इत्तेहाद में इकट्ठा किया गया और उनको यकीन दहानी कराई गई कि इस मुल्क में जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसे आज़ाद करने हम जा रहे हैं, ये अक़लियतों की पूरी नुमाइंदगी इस मुल्क में होगी। उस वक्त से लेकर आज तक चूंकि जलसों में मंफी बातें कम और मस्बत ज्यादा की जाती है। सबसे पहले जिक्र किया तो बेशक ये बात दुरुस्त है कि एसपी सिंघा साहब ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। लफ्जों की वजह से उनको लाज रखते हुए पाकिस्तान की क्रिएशन के अंदर 3 अहम वोट डले जो कि मिनॉरिटीज के थे, जिनमें एसपी सिंघा साहब, चौधरी जोशा भी थे। उन्होंने वोट कास्ट किए और पाकिस्तान आज हमारे सामने आज़ाद मुमलकत की हैसियत से वजूद में आई हुई है। और हम जिस तरह से इनको लेके चल रहे हैं, मुझे कभी उम्मीद